Welcome to online classes of SNG Secondary School, Naugama. Hello students, how are you? Today we are going to learn a poem Indian Weavers written by Mrs. Sarojini Naidu, and she is known as the Nightingale of India. This poem indicates the three main stages of man's life: birth, marriage and death. The poem is in a dialogue form. In this poem, she asks questions to the viewers, later she answers it. Let's go through the explanation of this poem. Indian Weavers by Sarojini Naidu is a short poem consisting of 3 stanzas having 4 lines each. सरोजनी नायडू की भारतीय बुनकर एक छोटी कविता है जिसमें 3 श्लोक है, जिसमें प्रत्येक की 4 पंक्तियां हैं. The poet talks about 3 types of dresses that the Indian weavers weave at the 3 particular times of the day. कवि 3 प्रकार के परिधानों के बारे में बात करता है जो भारतीय बुनकर दिन के 3 विशेष समय पर बुनते हैं. Metaphorically, each time and the dress weaved in that time symbolizes a particular stages of life. हर बार रूपक और उस समय में बुनी हुई पोशाक जीवन के एक विशेष चरण का प्रतीक है. इंडियन वीवर्स weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. Weavers weaving at fall of night. Why do you weave a garment so bright? Like the plumes of a peacock purple and green, we weave the marriage wheels of a queen. Weavers weaving Solomon and steel. What do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. Look at the first stanza of this poem. Weavers weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे. बुनकर दिन के समय में बुनाई करती है. एट ब्रेक ऑफ डे मीन्स अर्ली मॉर्निंग में बुनकर कपड़े को बुनाई करते हैं. वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे? इतना ब्राइट चमकीले कपड़े आप क्यों बनाते हो? जैसे ब्लू एज द विंग ऑफ ए हल्सियन वाइल्ड, जंगली की पंख के रूप में नीला जंगली. हल्सियन मीन्स किंग फिशर के शरीर के समान नीला कलर के कपड़ा आप बनाते हो. वी वीव द रॉब्स ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड. आंसर उसमें देती है, ये जो कपड़ा है एक नए जन्मे बच्चे का वस्त्र बुनता है. कवि पहले सवाल पूछती है कि सुबह के समय पर इतनी चमकीले नीले कलर के किंग फिशर के समान के कलर के कपड़ा क्यों बनाते हो? ये कपड़ा एक नए जन्मे बच्चे के वस्त्र को बुनता है. लुक एट द सेकंड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट. व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट? लाइक द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, we weave the marriage wheels of a queen. Weavers weaving at fall of night. रात के समय बुनकर बुनते हैं. At fall of night means the time of sunset. It means evening समय पर बुनकर कपड़ा बुनते हो. Why do you weave a garment so bright? आप एक कपड़ा इतना उज्जवल क्यों बनाते हो? इतना सुंदर, इतना चमकीले क्यों बनाते हो? Like the plums of a peacock purple and green, एक मोर बैंगनी और हरे रंग के पंख के तरह आप इतना सुंदर कपड़े क्यों बनाते हो? We weave the marriage wheels of a queen. वहाँ पर बुनकर उसके लिए आंसर दे रहा है, हम इस कपड़े को एक रानी की शादी की कपड़े को बनाते हैं. जो शाम के समय पर बुनकर जो कपड़ा बनाते हैं
और मोर की बैंगनी और हरे रंग की पंख के कलर के रॉब से और इतनी चमकीले जो कपड़ा जो बनाते हैं और वो एक रानी की शादी की कपड़े को बनाते हैं. Look at the third stanza of this poem. Weavers weaving salmon and steel. What do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud. We weave a dead man's funeral shroud. Weavers weaving salmon and steel. बुनकर एकमात्र बुनाई और फिर भी करते हैं और चुपचाप पूरी गंभीरता के साथ वीवर कपड़ा बुनाई करते हैं. What do you weave in the moonlight chill? चांदनी की ठंड में भी आप क्यों कपड़ा बुनते हो? White as a feather and white as a cloud. एक पंख के रूप में सफ़ेद और एक बादल के रूप में सफ़ेद कलर के कपड़ा इतना अकेलापन में, शांत में, इस मूनलाइट में आप क्यों बनाते हो? We weave a dead man's funeral shroud. हम एक मृत व्यक्ति की अंतिम संस्कार के कफन को बनाते हैं. The 3 times indicated in the poem refers to the 3 significant stages in man's life. कविता में 3 बार मनुष्य के जीवन में 3 महत्वपूर्ण चरणों को संदर्भित करता है. Dawn refers to birth, dusk refers to marriage and night refers to death. जो शुभक जो कपड़ा जो बनाता है वो एक न्यू बॉर्न चाइल्ड को दर्शाता है और जो इवनिंग के समय पर डस्क जो सनसेट के समय पर जो कपड़ा बनाता है और ब्राइट जो चमकीले जो कपड़ा है जो बनाता है वो एक मैरिज को दर्शाता है और जो रात को जो कपड़ा बनाता है इट रेफर्स टू डेथ अर्थात वो मृत्यु की संदर्भित करता है. फिर से मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.